Good morning, students. Students, as you know well, that we are going through poem 2 from the textbook, and the title of the poem is An Elementary School Classroom Lesson. Children, this poem is composed by Stephen Spender, and in the previous lectures we have read that the poet is describing really the miserable and pathetic condition of the children of the slum area who are sitting in the classroom of the elementary school. All the children are poverty stricken and they are the victims of malnutrition. सारे बच्चे गरीब हैं और सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कवि स्टीफन स्पेंडर ने उनके बारे में वर्णन किया और स्टीफन स्पेंडर इसके थ्रू सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्विटी का वर्णन करना चाहते हैं। सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता के बारे में बताना चाहते हैं। Today we shall go through the fourth stanza of this poem, and the fourth stanza is, now see the poem. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run to azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. Children, this is the fourth and last stanza of this poem, and in this stanza the poet wants to make an appeal to those people who are in power, and he wants to make an appeal to those who can come forward and who can do a lot, contribute a lot to improve the conditions of the children of the slum area. देखिए, इस स्टेडिया में कवि ने बहुत सारे ऐसे संभ्रांत लोगों से आग्रह किया है कि वो आगे आएँ और उन बच्चों के जीवन को इम्प्रूव करें, उन बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव करें जो स्लम एरिया के हैं, और वे उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान कर सकें जिससे कि उनके जीवन में कुछ सुधार आ सके। तो चिल्ड्रन, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that set upon their lives like catacombs. तो बच्चों, the poet wants to tell us, कवि हमें बताना चाहता है कि the map of the civilized world and the slums of these unfortunate children are two entirely different worlds. कवि कहता है कि इन बच्चों का जो संसार है, जो स्लम एरिया है, इन अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन का जो संसार है, जो कि एक स्लम एरिया है, गंदी बस्ती में, और द मैप ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और ये जो सभ्य संसार का जो मैप है, तो दे आर टू एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो वे वास्तव में दो अलग अलग संसार हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं,
और कभी अपील करता है कि गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सन्स मस्ट एवरेज दिस गैप। कभी आग्रह करता है कि जो गवर्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और विजिटर्स हैं और जो अदर इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं वो इस गैप को कम कर सकते हैं। दे कैन एवरेज द गैप बिटवीन द rich and the poor. They can fill the gap between the rich and the poor children of the slum area. They must peep into the world of the children living in the slums. ये जो संभ्रांत लोग हैं वो आगे आएं और उन बच्चों के संसार को देखें, स्लम एरियाज को देखें, एंड दे मस्ट मेक देयर ओन वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन टू, एंड दे कैन कंट्रीब्यूट ए लॉट टू टेक ऑल दीज चिल्ड्रन टू देयर ओन वर्ल्ड। तो अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, and these windows get set upon their lives like catacombs. Catacombs stands for, the meaning of catacomb is here a long underground gallery with excavations in its sites for tombs. The name catacombs before the 17th century was applied to the subterranean cemeteries near Rome. कैटाकॉम्स एक प्रकार की कब्रें होती हैं, अंडरग्राउंड कब्रें होती हैं। तो कभी आग्रह करता है कि ये गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं और विजिटर हैं, ये उन बच्चों को उनकी स्लम एरिया से बाहर ले जाएं, वो स्लम एरिया जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स के समान हैं, जो अंडरग्राउंड कब्रों के समान हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन and show the children to green fields and make their world run as they are on gold sands. Again, the poet tells us that the unsuitable environment of the slums has blocked all their gates to progress. देखिए, कभी कहना चाहता है कि जो स्लम एरिया का जो अनसुटेबल एनवायरनमेंट है उसने उनके जितने भी प्रोग्रेस के गेट्स हैं, जितने भी प्रगति के रास्ते हैं, उनको अवरुद्ध कर दिया है, उनको ब्लॉक कर दिया है। दे आर लाइंग शट लाइक कैटाकम्स, अंडरग्राउंड ग्रेव्स, और वे अपने जीवन को उन स्लम एरियाज में कैटाकम्स के समान व्यतीत कर रहे हैं, अंडरग्राउंड ग्रेव्स के समान व्यतीत कर रहे हैं। तो कवि चाहता है कि ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कभी चाहता है कि दीज ऑल द ऑब्स्टिकल्स शुड बी ब्रोकन, ये जितनी भी उनके सामने बाधाएं हैं, मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, इनको तोड़ देना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। दे मस्ट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ देयर नैरो लेन्स एंड डर्टी स्लम्स ऑफ द टाउन, और उन बच्चों को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो अपने नैरो लेन्स और अपने डर्टी स्लम एरिया से बाहर निकल जाएं, उन्हें बाहर निकलने की अनुमति मिलनी चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, these children should be taken out of the slum areas to the green fields, to the natural atmosphere, and make their world run as they are on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. Again, the poet tells us to let them enjoy the beauty of the green fields. कि उन बच्चों को हरे भरे मैदानों का जो सौंदर्य है उन्हें एंजॉय करने देना चाहिए। Their world should extend to the sky blue, waves rising over the golden sands,
और जो उनका संसार है वो हरे भरे मैदानों से लेकर नीले आसमान की ओर जाना चाहिए और गोल्डन सैंड्स पर जाकर, सुनहरी रेत में जाकर वो प्राकृतिक परिवेश का आनंद ले सकें। एंड अगेन द पोएट टेल्स अस, let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. We let the pages of wisdom be open for them. और कहता है उनके लिए ज्ञान के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, उनके लिए ज्ञान के मार्ग खुलने चाहिए। Let their tongues express themselves freely without any check or fear. और बिना किसी भय के पुस्तकों को पढ़ सकें, बिना किसी भय के ज्ञान प्राप्त कर सकें, बिना किसी भय के शिक्षा प्राप्त कर सकें। एंड इन द लास्ट लाइन द पोएट वांट्स टू टेल अस, हिस्ट्री डेयर्स whose language is the sun. और कहता है कि इतिहास केवल उन्हीं का है जिनकी भाषा में सूर्य जैसी ऊष्मा। मीनिंग देयर बाई इन द लास्ट लाइन द पोएट वांट्स टू टेल अस कि ओनली दोज पीपल मेक और क्रिएट हिस्ट्री। केवल वही लोग इतिहास रचते हैं या बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, whose language has the balm and strength of the sun, जिनकी भाषा में सूर्य जैसी गर्मी और शक्ति। मीनिंग देयर बाई अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ all these children are or should be given the opportunities, so these children also can create or make their own history. कवि के अनुसार यदि ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं इन्हें भी बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाएं तो ये बच्चे भी एक प्रकार का इतिहास रच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, this is the poem, an elementary school classroom in a slum. I hope you have got this poem, and all the stanzas are very important for your board examination. And now children, some multiple choice questions are given here in your textbook. See them. And the first question is, we are going to discuss some of the important questions of this poem. Question A is, the tall girl with her head weighed down means, and the options are given here. The girl, 3 options are here, and the correct option is, the girl is ill and exhausted. And question B is, the paper seeming boy with red eyes means, ये जो पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसा दिखाई देने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, इसका मतलब क्या है? That the boy is, the answer right option is thin, hungry and weak. The boy is thin, hungry and weak. And question C is, the stunted unlucky hair of twisted bones means, and the answer is that the boy has an inherited disability. ये जो ऐसा लड़का जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारी अर्थात हड्डियों की बीमारी विरासत में लेकर पैदा हुआ है, उसका वारिस है, हेयर है, तो उसका मतलब है कि द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी. And the next question is, his eyes live in a dream. A squirrel's game in the tree room other than this means the boy is.
And the right option is the boy is full of hope in the future. And the next question is the children's faces are compared to rootless weeds. इसमें बच्चों के जो चेहरे हैं उनको रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया है. दिस मीन्स दे, एंड द राइट ऑप्शन इज दिस मीन्स दैट द चिल्ड्रन आर इनसिक्योर. इसका मतलब यह है कि बच्चे इनसिक्योर हैं, अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं. एंड द क्वेश्चन इज what do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? Because this is an important question. The answer of this question is the color of sour cream is of white, dull and drab. The poet has used this expression to suggest the decaying aspect. The deterioration in the color of the classroom walls symbolizes the pathetic condition of the lives of those children. Those children stands for the children of the slum area. And students, one more question is there. The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with domes, word map and beautiful valleys. देखिए क्लासरूम की जो वाल्स हैं, क्लासरूम की जो दीवारें हैं, उन्हें डेकोरेट किया गया है विभिन्न तस्वीरों से, विभिन्न पिक्चर से, जिसमें कि शेक्सपियर की पिक्चर है. बिल्डिंग्स विद डोम्स, बड़ी बड़ी डोम्स वाली जो बिल्डिंग्स हैं उनकी पिक्चर है. वर्ड मैप दिया है और ब्यूटीफुल वैली, कैरोल वैली दी गई है. तो हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन ऑफ द स्लम. तो ये जो पिक्चर्स हैं वो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनके संसार से कैसे एकदम विपरीत हैं, एक कंट्रास्ट शो करती है. सो स्टूडेंट्स, द पोएट टेल्स अस इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि द पिक्चर्स दैट डेकोरेट द वॉल्स hold a stark contrast with the word of these poverty-stricken slum children. देखिए वो सारी पिक्चर्स जिनके थ्रू क्लासरूम की दीवारों को डेकोरेट किया गया है, तो वो उन स्लम एरिया में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनके संसार से बिल्कुल विपरीत हैं. They create a kind of contrast. Obstacles hamper their physical and mental growth. विभिन्न प्रकार की जो ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, उन्होंने उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को रोक दिया है. द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी. और ये जो पिक्चर्स दीवारों पर दी गई हैं ये सजेस्ट करती हैं ब्यूटी के बारे में, वेलबींग के बारे में, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में, ए वर्ड ऑफ सनशाइन एंड वार्मथ ऑफ लव के बारे में. But the word of the slum children is ugly and lack of prosperity. लेकिन इन बच्चों का जो संसार है वो अगली है, भद्दा है, कुरूप है और लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी. वहाँ पर समृद्धता जैसी कोई भी वस्तु नहीं. They are poverty stricken and they are far far away from the natural atmosphere. So student, this is the poem An Elementary School Classroom in a Slum, and these are some of the important questions. I hope you have got it. You have understood it. Thank you.